ਅਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਕਿ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੈ ਖਾਏ ਤੇ ਸਿਓ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਮਾਏ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰਰਨ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਰਕ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ, ਆਖਣਗੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ।
उन्हें कविता पढ़ी, तू दुख से क्यों घबराता है। मैनू तुख नहीं, उन्हें सारी तुखा नहीं याद, पर वह भाव जिहड़ा सी तू दुख से क्यों घबराता है। वो बड़ा उन्हें लिखिया कि तू ये दस भई जदों तू बहुत सुख मंगदा है, सुख तेन देंदा की है। जब सुख जाता तेन की दे के जाता है, दुख दे के जाता है। तो कहता दुख जिहड़ा है वो जब जाता तेन की दिंदा, सुख दिंदा। सब गुरु नानक ने लिखिया दुख दारू सुख रोग पया। ये आम कहावत है भी तपो राज ते राजो नरक, पर फिर भी भजदे ने उधर। तो मैं तुहानूं ये अर्ज करनी है नामधारियां नूं, आप सुख लवो, नाम जप के सतगुरां दे हुक्म च आवे ते लोकां नूं ये चानण दसो कि सतगुरु राम सिंह आया, उन्हें सानूं आ सुख दिता कि क्यों दुख विच पए हो, सारे सुखी होवो नाम जप के। बाणी पढ़ो, बाणी कंठ करो, बच्चिआं नूं बाणी कंठ कराओ। तुहाडे कोल सूबा गुरमेल सिंह होरी, सूबा गुरदयाल सिंह होरी बधे वाले ने, इन्हां नूं नाल खाओ भी मैं इन्नी बाणी कंठ कीती है, मैं इन्नी करांगा। अज मैं मुक्तसर आख्या सी, सास ने बड़ी किरपा की, उत्थे कुछ ना आए सन गुरबाणी कंठ करन वालियां दे। ते एक पिता ने आख्या कि मेरा पुत्र कहंदा कि मैं 5 बाणियां कंठ करांगा, ते पिता आंदा मैं 8 करांगा। वैसे आम तौर पर हुंदा भी जिहड़े पिता ने ना उन्हां कोल जे 2 दुकानां होण ते पुत्र 6-7 दुकानां बनाउंदा है। पर ये उल्ट होया भी पिता ने आख्या मैं करांगा 8, ये 5 करेगा। तो तुसीं बाणियां कंठ करो, बाणी कंठ करोगे तो उत्थों ही ये पता लगेगा, जिस तरह तुहानूं कवि जी ने दस्सिया कि नाम तुल कछ अवर न होए। दुनिया का राज कुछ नहीं हैगा नाम दे अगे। नन्ना ते मम्मा 2 अखर ने, पर यह सब तो सिरे की गल है, जिहदी बराबरता कोई नहीं हैगी। तुहानूं पता है ना कि कथा लिखी समुंदर जदों पुल बनाउणा सी ना भगवान राम वेले, ते रारा ते मम्मा 2 नां लिख के पत्थर जोड़ के पत्थर तार दिते सन। इन्नी ताकत वाली चीज़ है नाम। नाम इन्नी ताकत वाली चीज़ है कि रब दे भगतां दे उत्ते हाथी छड्डे गए। हस्त भाग का चीसा मारा या मूर्त का हौ बलिहारा है, आह मेरे ठाकुर तुमरा जोड़। हथ जिहड़ा हाथी जिहड़ा सी ना वो भज गया, डरदा चीका मारदा, नमस्कार करदा। पर ये सारियां गल्लां सुन के तुसीं सुनिया कि आटा गुन्नो, उहदी रोटी पकाओ तवे ते, इस तरह भाजा बनाओ, इस तरह स्वाद बन जाता। ये गल्लां आखी जाओ, जे बनाओगे ना तो खाओगे की। तुसीं भजन लवो, जिन्हों ने लिया वो करो, घर लिया के 20 बण कणक रख छड्डो, जे पी के ना खाओगे तो वह कख नहीं करती। राजा जनक की तुहानूं मैं गल दसी है कि उन्हें नरक खाली करा दिते। राजा अमरीक जिहड़ा सी, भाई गुरदास ने लिखा राजे अमरीक मोह वरत है, रात पई दुर्वासा आया। एडा वड्डा रिखी जिहड़ा बहुत अपने आप को समझदा सी, उहदे छक्के छुड़ाते राजे ने। राजे की गल सीधी रब नाल सी। वो भजिया बामण भन्ना जीव लै, सारे देवतियां कोल, ब्रह्मा कोल, विष्णु कोल, शिव जी कोल, सब कोल गया। उन्हें आख्या नहीं ये गल नहीं बननी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰगो अमरीक को, ਤਾਂ गल मुकेगी तेरी। चक्कर सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया, ਉਹਦਾ गर्भ तोड़ दिता। किने? राजे ने। की करदा सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਘੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਚੱਕੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਘੜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਢੱਠਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ। ਮਨ ਢਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਟਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਹਉ ਪੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਕਾਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ।
भयो कृपाल धर्म को ठाकुर तो सगरो दुख मिटायो, कहो नानक हमें पीत गुर खोई तौ दयार विष्णु पायो। भाई गुरदास जी ने बड़ा कुछ इसके वास्ते लिखिया। आवत है जाकै द्वार मांगन भिखारी दीन, देख कै अधीनता निरासो न बिडार है। बैठता है जाकै द्वार आशा को बिडार सुहान, अंत करुणा कै टूक तोड़ ताहे डार है। कुत्ता सब घर छड्ड के एक घर बह जाता तो वह मालक जिहड़ा उहनूं रोटी पा ही दिंदा। फिर अंत करुणा कै टूक तोड़ ताहे डार है। पायन की पनही छार होए गुरमार्ग में, थियो पवाई दब जे साईं लोड़ै सब एक सिजै ब्याल ताड़िया, तां साईं दा दरबाड़िया। छाड़ अहंकार छार होए गुरमार्ग में, कबहू दया कह दयाल पग धार है। तेरे हिरदे विच चरण उहदे आ जाणगे जे तूं आ छड्ड देगा। तो ये तां पता लगे कि जे बाणी पढ़ोगे तो बाणी कंठ करो तो उहदे ते अमल करन दी पूरी कोशिश करो। तुहानूं अद्धी रातों पिछों नींद नहीं आनी चाहिए, बीमारी नाल नहीं, किसी तकलीफ नाल नहीं, नाम जपण वास्ते। तो जे जागते भी रहे, स्नान भी कर लिया तो गप्पा मारी गए तो सारा किता कराया एवें जाता। हंकार एक ऐसी चीज़ है जिहदे वास्ते लिखिया है ये हाथी का स्नान है। हाथी का की स्नान है? लोग मिट्टी पई होवे ना तो उत्ते पानी पा के ते साफ कर लेंदे ने पिंडे नूं, पर हाथी इस तरह नहीं करता। वो पहले पानी पाउंदा पिंडे ते, फिर वो मिट्टी चुक के अपने पिंडे ते पा लैंदा। गुरु तेग बहादुर कहंदे ने ये हंकार जिहड़ा ना हाथी का स्नान है, कितना भैड़ा है। इनू तगड़े होके छड्डो, भजन करो, बाणी पढ़ो, आपो अपने पिंडां विच एक वक्त बनाओ इहो जिहा, 1 घंटा सारे इकट्ठे होकर नाम सिमरन करया करो। अमली रचन अमलियाँ चोरी, अमली रचन अमलियाँ बेकर्मी बेकर्म रचंदे, चोरा चोरा फिर हड़ी, ठग ठग मिल देश टगंदे। जुआरी जुआरियाँ बेकर्मी बेकर्म रचंदे। सारी दुखा नहीं होंदियां। अखीर ते भाई गुरदास जी ने लिखिया, दुखियारे दुखियारियाँ मिल मिल अपने दुख रवंदे, इस तरह साध संगत गुरसिख जुड़ंदे। वेखो किवें करदे ने, उन्हां कोलों सिੱਖਿਆ लओ, उन्हां कोलों चोरी यारी की सिੱਖਿਆ ना लओ, उन्हां कोलों देखो भी वो किवें इकट्ठे होंदे ने। आपां इकट्ठे होना इस तरह, इकट्ठे हो के नाम तैग नहीं कीता। तो ये सतगुरां दा हुक्म है। और सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन में सारा कुछ करना है। हुण समा बहुत दूर का नहीं, सतगुरां ने दर्शन देने ने। ਜਿਹੜੇ नाम जपणगे, ਜਿਹੜੇ बाणी पढ़नगे, उन्हां ते खुशियां सतगुरां ਦੀਆਂ होणगियां। ते ये पता नहीं किस दिन दर्शन होण, पर जापदा भी समा नेड़े आ, दूर का नहीं। सतगुरां दे दर्शन हो जाण, सारी चीज़ इस संसार से आके सब तो महानता बाणी विच दर्शन की बहुत वड्डी महानता लिखी है। तो सतगुरां दे जे दर्शन हो जाण तो फिर होर किसी चीज़ का घाटा नहीं रहिंदा। वेखो किस तरह सतगुरां दे दर्शनां वास्ते ही गुरु अर्जन ने गुरु रामदास नूं चिट्ठियां लिखियां। मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई। त्रिखा ना उतरै सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। तो वो कितनी महानता वाली गल है। इस वास्ते तगड़े होके उद्यम करो, इस गल का उद्यम कर हर जापना, वड भागी तन खाट, संत संग हर सिमरना। इकट्ठे होकर नाम सिमरन करो, मल जन्म जन्म की घाट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद है उन्होंने। उन्होंने घर दी सहूलतां भावें घर छोटा होवे पर घर की सहूलत बाहर नहीं मिलती, पर फिर भी उन्होंने प्रवान की साड़ी सेवा। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। कोई त्रुटि रही हो तो वो वास्ते खिमा दे जाचक हाँ। सानू ये भी कदे कदे कोई ना कोई सेवा का मान दिंदे ने, कोई अखां दी डॉक्टरां कोल जाण वास्ते जां होर कोई सेवा सानू बहुत दिंदे ने। सानू बहुत खुशी है इस गल की। तो मैं ये अर्ज करांगा कि जिन्ना वक्त साडा कम्मां विहारां विच लगदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 घंटा नाम सिमरन
सतगुरु राम सिंह की याद ये बहुत जरूरी है। सतगुਰਾਂ ने आना है। चंत साहब जिहड़े बैठे ने ना, इन्होंने भी इस तरह ज्योतिष लाया कि सतगुरु राम सिंह जीवित ने तो उन्होंने हर हालत में आना है। एक मिस्टर बैरी हैगे ने दिल्ली ने फरीदाबाद, वो भी लत्तां तो हीने ने पर वो ज्योतिष का काम करते हैं। उन्होंने आख्या कि सतगुरु राम सिंह इस वेले रूस दे विच चीन के बार्डर नाल जां किसी पासे दस्सिया उन्होंने जंगल दे विच उन्हां दा वास है। तो वो 2012 विच उन्होंने दर्शन देना है। इस तरह ही एक होर हैगे ने मद्रास के कोल भृगु समझता वाले, उन्होंने कोल एक अपना सिंह गया सी ते उन्हें उन्होंने आख्या भी तेरे उत्ते तेरे गुरु की बड़ी कृपा है तो तुहानूं तुहाडे वड्डे गुरु के दर्शन भी होने ने। ये उन्होंने आख्या। मैं वो अंग्रेजी विच मैं वो पढ़िया नहीं चंगी तरह, मेरा मतलब सिर्फ कहण तो है भी वो उन्होंने रजा है। ये हुण एक जिस तरह दिन ना निशानियां ने इस गल दियां कि सतगुरु राम सिंह ने दर्शन देने ने। सतगुरु राम सिंह जिस वे दर्शन देणगे, जो उन्होंने पता लगेगा कि साढ़े हुक्म अनुसार 1 घंटा नाम सिमरन करते हैं, उन्होंने खुशियां मिलणगियां। उन्होंने साढ़े सारे बच्चों के सिरों से सतगुਰਾਂ के हाथ जिस वे टिकण गए, उस खुशी का अनुभव तो वही कर सकते हैं। सतगुरु कृपा करे असीं उन्हां दे हुक्मां ते चलीए। जिस वे सतगुरु आउण सानूं वो शाबाश देण कि शाबाश बच्चों, क्योंकि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जिस वे गए ने प्रदेश में, उन्होंने आख्या भी जिहड़े आंदे सी तुहाडे वास्ते सरबंस ला देंगे, तुहाडे वास्ते कुछ कर देंगे, वो मेरे वास्ते पाठ ते भजन करो। तो जिहड़ा ये करेगा उन्होंने सतगुਰਾਂ ने खुशियां देनियां ने। 1-1 घंटा नाम सिमरन, सने कैसी इशनान सूरजों पहलों, हर जी प्रति हर घर प्रति 1-1 आद या दसम का पाठ सतगुरु राम सिंह के दर्शन विच 1.25 लाख पाठ हुणे पूरे होए ने। ते दूसरे 1.25 लाख जिहड़े ने चलते हैं, उन्हां चों 5वां को हिस्सा हो गए ने। ते तगड़े होकर उन्हां हिस्सा पाओ। सतगुਰਾਂ दे दर्शन दे व्यापारी बनो, सतगुਰਾਂ दी दर्शन की खास करो, सतगुਰਾਂ नाल ही प्यार करो ताकि साडा जीवन सफल होवे। सतगुरु राम सिंह के दर्शन होण, सारे संसार से शांति होवे, कोई एक दूसरे ने दुख देने वाला न रहे, सारियां गऊआं सुखी वसन, गरीब सुखी वसन। मैं इस करके आगे मिली है। ये जगह तुहानूं पता है हुण थोड़े सालों तो राम जन्म भूमि का बड़ा रौला पैंदा है। ये नहीं पता भी वो राम जन्म भूमि की जगह ठीक है या नहीं ठीक, ये वास्ते चर्चा शुरू हो गई है। पर जिहड़ा ये जगह सानूं मिली है, इत्थों के मंत साहब मस्तराम उन्होंने साडे सहयोग दिता साडे नाल चंगी तरह। प्यारा सिंह इत्थे हुंदा सी एक, उन्होंने मैं आख्या इत्थे एक जमीन सी, मैं वो बेच दी है। आंदा मल सिंह आंदा भी ये रब दे पिंड दी जमीन है, नहीं बेचनी। वो प्यारा सिंह जिहड़ा सी उन्हें पिंड पिंड जाके पंचायतां दे सरपंचां दे पंचां दे ते चलदे फिरदे जिहड़े लोग सन जिहड़े चंगे सरकरदा, उन्हां दे दखल करा के ते सुरिंदर सिंह होरां ते उन्होंने इकट्ठियां के दफ्तर ते पिंडां विचों ये करके सारा कुछ कीता है। असीं लभ रहे हैं, कोशिश करते हैं भी प्यारा सिंह दी तस्वीर लभ जाए तो इत्थे असीं लाउणी हो। इत्थे ये भी जिक्र किया गया सी सरदार बेअंत सिंह दा, उहदा तो बहुत ही धन्नवाद है कि जिन्ने जलसे जलूस बंद किए सन, जे सरदार बेअंत सिंह ना होंदा तो कोई बाहर जलसा जलूस नहीं कर सकता। जलसा जलूस की गल की खेती बंद हो गई सी, बाहर आनी विहार होने बंद हो गए सन। तो उन्होंने सतगुरु राम सिंह के मिशन नूं अगे ले जाने वास्ते बहुत वड्डा उपराला किया। शहीदां दी सारियां संस्थावां सत्तियां ने नाल उन्हां दे वास्ते मदद की है। सुरिंदर सिंह ने दस्सिया जिस वेले जो सैकटरी सन ना, बेअंत सिंह चुप करके बैठा रहिंदा सी। जिस वेले वो गल अखीर से आई ना, सैकटरी ने आख्या ये जी जगह है ना लुधियाने वाली, ये 7 करोड़ की जगह है जी तुसीं दे रहे हो। उन्हें आख्या जी 700 करोड़ की तां भी देनी है। तो 1 रुपए विच उन्होंने वो जगह दी है। इस तरह ही अंमृतसर भी हुण उस चीज़ नूं बादल साहब अगे लैके तुरे ने। ये नहीं किया भी वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जी मैं वो गल तोड़ के अगां करा। उन्हें ये बहुत वड्डी बहादरी है उन्होंने कि उन्होंने गल नूं लैके अगे तोरिया उन्होंने, तो वो बहुत मदद कर रहे हैं। जिन्नियां गल्लां उन्होंने उत्थे मलेरकोटले आखियां सन, उदों वध सेवा कर रहे हैं बादल साहब भी। मैं यही अर्ज करांगा
सगुरां दे चरनां 'च अरदास करो भी सानू अपने सेवक बना लैन। तो सगुरां दा हुक्म यह है कि जो मेरा सिख है ना वो भुखा नहीं मरेगा। सिर्फ सिख बनने की लोड़ है। जो कोई आखे ना मेरा हुक्म सारे हिंदुस्तान से चले, प्राइम मिनिस्टर बनने की लोड़ है, वो बन जाए तो फिर हुक्म चलेगा। जे सिख बन जाए तो भुखा सच्ची मुची नहीं मरेगा। मन बिरती एकाग्र करने लई, रसना पवित्र करने लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह। एक बार फिर आखो जिन्हों की कृपा बीड़ वसिया पाकिस्तान निकल के आए हैं, सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। जिहड़ा इस कलयुग के समय में सतगुरु दियां, सतगुरु के सिखां दियां भजन बाणी दियां गल्लां कर सकदा, वो बड़े वड्डे भागां वाला। जदों मींह नहीं पैंदा, दूर दूर तक धरती सुक जाती है, किसी का ट्यूबवैल लगा हो जाता, वो कहते हैं ये बड़े वड्डे भागां वाला। पर सब तो वड्डे भाग इस वास्ते ने कि असीं सतगुरु का नाम, सतगुरु का जस करते हैं इस कलयुग के समय में। मैं सतगुरु प्रताप सच्चे पातशाह के देश जिन्हें भी घर घर अंदर धर्मसाल ये देश इन्ना वधिया है। जे इन्नी अति दूर मान लिया ना, घर घर के अंदर कीर्तन होवे ते उत्थे धर्मसाल भैणी साहब अंदर बनया ना, उसके उत्ते गुंबद जे बनाते साडे इंजीनियर ने। तो मैं उन्होंने आख्या भी गुंबद बनाने की लोड़ नहीं, ये जिहड़ा काम करना ना वो होना चाहिए। गुंबद तो बड़े बन जाए, उसे सोना भी लग जाए, पर भजन ना हो, वो इस तरह हो जाता जिमें बजाजी वाले खाने खाने बना के ना तो लकड़ा के किन्ने सारे थां बना लैन, वो खाने बने पै रहन, बजाजी ना हो, इस तरह हो। तो मैनू बड़ी खुशी है, भीड़ वाली साध संगत बहुत कृपा करती है। मैनू पता नहीं हम दो थाई लगती है, शनिवार की एक थाई लगती है, दो थाई लगती है। इन्होंने सिंघां का जिक्र किया, बीबियां भी बहुत उद्यम करदियां ने, जिहड़ियां घरां तो आके कीर्तन सुनदियां करदियां ने। मैनू सारियां दा पता नहीं, एक बीबी वो बैठी है भजन सिंह की लड़की, ना सारा नहीं पता, लाडी कहते ने उसका नाम, ये काफ़ी उद्यम करती है। जदों आदमी बच्चा होता उन्हें समझ नहीं होती, समझ जो आती है ना आदमी को, उस वे फिर वो समय के अनुसार माया वाल भजदा। तो अज सुनिया जो सगुरां के देश भाई जो माया वाल भजदा ना, वो सगुरु वाल पिठ हो जाती। तुम ये चंगी तरह समझ सकते हो भाई सूरज जड़ा ना, जदों ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, 20 ਆਦਮੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੋ। तो ये मैंने बड़ी खुशी है, नौजवान बच्चे बीबियाँ आशा जी वाल सवेरे आते हैं, उद्यम करते हैं। अज सचबा के उपदेश सुनिया कि संत फुला सिंह की जी सिफत लो, उन्होंने पिता सन सभरा ने आख्या इन्होंने उसका भी भाग लगा, बड़ा पैसा बथेरा बचाया, बाहर लोगों की सुरबा भी बड़ी हुई, पर सभरा ने आख्या कि इन्हों की बरकत नहीं, ये बरकत उन्होंने संत फुला सिंह की जी मेरे नाल वड्डी उम्र के ने, तो वो मेथों पहलों आके बैठे होंगे, उन्हों की बरकत। मैनू ऐसी वीर जोगिंदर सिंह मिल के बड़ी खुशी हुई। मिलिया मैं गल्लां बातां कोई नहीं कीतियां उहदे नाल, वो अपने इलैक्शन के सिलसिले एक पिंड आया था, पता नहीं किहड़ा पिंड, दौद, ते उत्थे महाराणी जिहड़ी महाराजा अमरिंदर सिंह होरां दी वो भी आए सन। ते मैं उन्होंने आख्या कि कुछ आखना, उन्होंने आख्या साडे कोलों वीर जोगिंदर सिंह ही आखे। वो सारा नितनेम बैठा रहा सी, जिन्ना सगुरां दा उपदेश सी ना सारा उन्हें आप बानी उठ गया, कोई इलैक्शन की गल नहीं की, कोई किसी गल की गल नहीं की, उन्हें सारा उपदेश सगुरां ने आख्या आ उपदेश जिहड़ा साडे धारन वाला ये इस तरह तां होया जो उन्हें ध्यान नाल सुनिया सी। ते जिहड़े सुनदे ने उन्हां नूं जिन्नी सुन के मन्निया तिन्हां निज करवास। मैं
ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮੁਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨਾ, ਕਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਈਰਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਡਗਰੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋਧ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਸਬਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਝੱਟ ਲੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 12 ਨਹੀਂ 16 ਹੀ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਭਈ ਤੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਰਾਜ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਰਾਗ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕਲਾ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਰਾਪ, ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਾਪ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇੜਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਉਮਰ ਫਰੀਦਾ, ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ, ਸੰਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਭਾਈ ਅਰਜਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੀ ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਨ ਕਾ ਪਾਲਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
तो तुसीं ये देखो भी किन्ने किन्ने पैसे वाले गुरु नानक को किन्ने पैसे का ते वो जिहड़ा देवदूत जो राजा सी उन्होंने गुरु नानक की शरण आना पिया। कई आदमी सोचते ने मेरा कद छोटा है या मेरा शरीर नहीं सोहना, ये जिन्नी गल है ना ये सारी उन्होंने जाती है जिन्हें शरीर बनाया है। बिल्कुल ना शंका करा करो किसी से, ना अपने आप से जावी मैं ये जिसने बनाया है ना, ये सारी गल वो जाती है। उसकी तारीफ करो कि एक आदमी जो आता है मैं बहुत गरीब हाँ, मैं कहा नहीं तू बड़ा अमीर है, मैं कहा मैं तो पैसा मैं रोटी सवेरे होती शाम में फिक्र होता मैं कितना खानी है। वो आता ऐसा इस तरह कर मैंने एक बांह वढ़ के दे दे अपनी, मेरे को 50,000 रुपये देता। आंदा है मैं किस तरह करा, आंदा कितना का नहीं सुनने पता लगा जी। तो ये जो सतगुरु ने रचिया उन्हें लिख दिता वो लंघना पैना। मैं अगे भी शायद दसिया हो तुहानूं सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह वेले एक मंगल सिंह पहलवान लिखिया, वो दो औरतां सन। एक औरत वो चढ़ाई कर लगी तो वो बड़िया ब्रह्म ज्ञान विचरदियां सन, और दूजी आखन लगी भी मैं भी मरना है, थोड़े लम्बे साल है कट्ठियां मरीए आप। वो आंदा दो मर जाना, मेरा घर किने सामना रोन लगा। वो आती है बिल्कुल ना रो, ये हुक्म है, ये वरतना इन रोक नहीं सकता कोई। कक्का कारण कक्का दो लिखियो लेख ना मेरे गऊ नहीं हो कद दो वारा करना हार ना भूलना हारा। वो साध संगत जी आखन लगी कि तू तो सानू दोहां रोना, साढ़े घर के 6 जी रात 12 बजे तक मर जाने, एक फलाना बंदा पिंड चों मरना। आखन जी इस तरह पाया वो फिर बड़ा रोवे। फिर सगुरु सिंह को आया, खैर वो तो सगुरां की वजह थी। वो मरण तो बाद उन्होंने उन्होंने बुलाइया, उन्होंने आख्या असीं इत्थे गुरु हरि सिंह कोल सां, अगे भी गुरु हरि सिंह कोल तू सानू रोया ना कर, याद कर। जिस तरह मैं सुनिया कोई भगवान कृष्ण का कोई टीवी वाले विखाते हैं जिदे उन्होंने लिखा कि अर्जन को बड़ी शंका हुई मेरा काम नहीं होंदा, वो किसी की मदद करता सी। भगवान कृष्ण ने आख्या मदद ना तू करेगी, उन्हें आख्या नहीं, उन्हें आख्या ये हुक्म है इस तरह होना। वो फिर अखीर उन्हें आख्या भी मैं ब्रह्मास्त्र चलावा। वो ब्रह्मा को गया, ब्रह्मा ने आख्या तू रियाद रोड़ा चाहना, मैं तेरे को जड़े ना वो ब्रह्म विद्या को खो देना। वो बड़ा दुखी होया, उन्हें भगवान कृष्ण को आख्या, उन्हें आख्या चंगा आप इन्होंने सारे उत्ते जड़ा ना वो चलिए। इन सारे उत्ते गए ना, जिन्होंने देखा मैंने उन्होंने दसिया, मैंने नहीं पता गल किवें। मैं उन्होंने सारे उत्ते जिसे गए ना उसने तो कृष्ण भगवान पूछा। उन्हें आख्या भी तेन मेरी समझ नहीं आई इस गल की। तो मेरा बड़िया मिसालां ने होईयां। ठाकुर महावे वाले जिहड़े सन ना, वो किस सिंह उन्होंने नाम बहुत भजन किया उन्होंने। उन्होंने आख्या भी मैं हुण मर जाना। ये सतगुरु प्रसाद सिंह मत्था नहीं सन टेकते, दीवान च उन्होंने प्यार देना सतगुरु। सच्चे पातशाह भी कृपा करते सन, उन्होंने बड़ा आदर करते सन। एक दिन ज्यों लगे ना मत्थे टेकन, टेकी जान फिर चल जान फिर टेकन। उन्होंने आख्या सिखा ने प्रसाद जी तुम अगे मत्था टेकते नहीं सर, जो टेकते तुम। उन्हें आख्या पुत्र मैं हुण ना इस संसार तो चले जाना, तो मैं वेखण गया था भी कित्थे जाना, किड्डी वड्डी गल है। आप तो पैली लैनी है, पहले बंदा वेखदा जाके भी साफ पानी है कि नहीं, की कुछ है। पर सगुरां दे सतगुरु राम सिंह के सेवक सिख जिहड़े ने किन्नी सगुरां की कृपा सी उन्होंने। उन्हें आख्या मैं वेखण गया था, ये सतगुरु प्रताप सिंह उत्ते बैठा, मैं जा नहीं सकना इहदे बिना, तो मैनूं जन्म ना धारना पए मुड़ के मत्थे टेकण वास्ते। मैं इस वास्ते मत्थे टेकदा हाँ। तो मैं तुहानूं ये करनी कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने तुहाडे ते कृपा कीती है। एक तो हर घर विच एक गऊ जरूर चाहिए। सतगुरां ने उस सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे आ जाण कर तो बड़ी वधिया दिसदी खलोती, तो ਸਾਨੂੰ फिर ਜਿਹੜੇ सतगुरां ਦੇ हुक्म ने ना भुल ਜਾਂਦੇ, ये भुलने नहीं चाहिए। इन्हां दे मनण नाल सानूं फायदा है। सतगुरां दे उपदेश च रिकार्ड होया कि ਜਿਹੜੇ गुरु गोदवरकर जी सन ना, राष्ट्रीय संघ के गुरु ਜਿਹੜੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ चिट्ठी आई। सतगुरां ने आख्या, उन्होंने लिखा भी तेरे आखे भी लोग लगते हैं, गऊ रखिया वास्ते लिखा, बड़ी वधिया चिट्ठी उन्होंने लिखी। तो साड़ी तो
ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, यही दे आ गया तुम गए पाऊँ, गऊ का दुख जग से मिटाऊँ, यही आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटा कष्ट गौन छुटा पेट पारी। तो मैं अर्ज करूँगा सारे एक गऊ सारे घर में रखो, ताकि सौरां का हुक्म मनाया जाए। गऊ का कोई फर्क है, बड़ी चंगी गल रखनी चाहिए है, पर हुक्म सौरां के नाल रखी जाए ना, वो सानू फायदा दिंदी है। तो बादशाह ने बार बार अपने उपदेश में नाम सिमरन वास्ते आख्या, जोड़ा नहीं करेगा ना 1 घंटा नाम सिमरन, तो दुखी होएगा। मैं तुहानू अगे भी आख्या, मैं मेरा जी करदा सारे सूफी दिसो, इस वास्ते नहीं मेरी एक जिम्मेवारी सगुरां ने लाई, चौकीदार है मेरा, मैं पूरा तो नहीं कर सकता, पर जिन्ना मैं कर सकता। वो कहते ने गल अटती एक, वो भगवान राम के झगड़े लड़ाई वेले ना रावण नाल, वो बाहरों मिट्टी से लिबड़ के ते समुद्र में जाए, तो बेचारी भी कहती है मैं समुद्र पूरती हाँ। समुद्र पूरन का मतलब यह है भी वो भावना है, समुद्र पूरिया जाए, वो की कर सकती। हड़ आए कि थमी है दरियाए बंदे, पर जोड़ा भावना की गल है सारी, सगुरू कृपा करे साढ़े मन से रखे, साढ़े को हुक्म मने जान, तो असीं इस संसार में जो जाना उदों सगुरां दे चरनां विच अंतर गुर आराधना जिवा जप गुर नाओ, नित्य सतगुर देखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सिद्धि दसिया दरगाह पाइया ठाओ, ये सतगुर हो सके। मैं जेडे जेडे शरीर बाहरों आए उन्होंने धन्यवाद करना, बहुत धन्यवाद उन्होंने करना, बीड़ वाले का जो भजन बाणी करते ते कराउंदे ने, प्यार नाल प्रेम नाल एक दूजे नाल वरत्या करो, ईर्ष्या छड्ड दिओ, तगड़े हो। इत्थे अज सरपंची की गल होई सी, जे हुण तुहाडे बीड़ विचों अज इत्थे गल होवे, भीड़ विचों जे इलैक्शन हो जाए, सरपंची की चोण हो, तो माड़ी लगेगी गल। तुहाडा प्रभाव ये होना चाहिए भी तुहाडे नेड़े नेड़े दे सारे पिंड जिहड़े ने वो प्यार प्रेम नाल बगैर इस गल तो करन। सानूं पैसों की गल कोई नहीं, पैसे सगुरां सानूं बड़े दित्ते ने, सानूं जिस तरह सुरजीत सिंह ने आख्या सी ना, कि सानूं सगुरां ने यह आख्या भी अपने पैरों में खड़ो, किसी वाल ना झक। सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह प्रमाण दिंदे सन, आंदे जिहड़ा रसायणी हुंदा ना, वो जिथे बैठदा वो ये नहीं आता भी लोग की करते हैं, वो आता है कि जे 12-12 वो तक कोई भुखा मरिया तो मैनू पाप लगना। सगुरां ने करके विखाया, किन्ने गरीब आदमियों ने जमीन दित्तियां उधर जीवनगर दे रखे। मैं जो ना गलती करा तो 2000 एकड़ के करीब जमीन, बहुत वधिया जमीन सगुरां ने गरीबा सिखां नूं दित्तियां। फिर उत्थे ये नहीं देखिया भी ये जमींदार है जो दूसरा, सब सगुरां कृपा की। पर ये वास्ते चेता भी रखना चाहिए सगुरां का, जिन्होंने कृपा की। मैं फिर यह करना, जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय पूरे काजा, जिस नाम हृदय किसी पूर्ण धर्म पाए, नाम बिना जन्म व्यर्था जाए। मैं फिर अर्ज करूँगा सरपंची की चोण ना होने दिया जो, सज्जा सिंह सरपंच बना दो। साध संगत मन बेटी एकागर करने लई, रसना पवित्र करने लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे फुलवाड़ी दे फुल, कोई किसी रंग का, किसी की किसी तरह की खुशबू, अपना अपना समा बिता के जाते हैं। अज खास करके उस्ताद नत्था सिंह होरां दा दिन भोग पा रहे हैं, उन्होंने उन्होंने वास्ते बहुत कुछ आख्या भी गया तुहानूं, पर फिर भी बहुत सारी गल्लां रहिंदियां ने। मैं भी जे आखां बहुत चिर समा बड़ा समा इकट्ठे रहे हैं, जदों तरन सिंह होरां ने लिखिया मैनूं ये सारी गल्लां नहीं याद आउंदियां, पढ़िया पता लगदा जिस सुरजीत सिंह ने आख्या सी। सगुरां पुछया उन्होंने साडे होर किसी परिवार के जी नूं नहीं पुछया, मैनूं पुछया भई ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ उस्ताद नत्था सिंह होरां दे राहीं भई कोई चाहिदा तो नहीं, होर इन्ने लोग कुछ लेंदे ने। जिस तरह उन्होंने दस्सिया भई मैं आख्या भी कशहरे तो बिना नहीं होर कुछ चाहिदा, सतगुरां ने आख्या असीं समझ गए गल भी इहनूं सिक्खी चाहीदी है। ये तरन सिंह ने लिखिया। उस्ताद जी बड़ा प्यार करदे सन, असीं घुलदे भी रहे हैं, गतका खेडदे रहे हैं।
उस्ताद जी इन्ने तगड़े सन, 6 आदमी डांगा वाले ला के ते उन्हां नाल कल्ली डांग नाल उन्हां नाल पूरे आउंदे सन। मैं बड़ी कोशिश की, चेता भुल गया। काका सिंह है सुखजीत सिंह होरां दे पिंड दा राइयां दा, वो उस्ताद जी दा शिगिरद भी सी, बड़ा प्यार भी सी उन्हां नाल। मान सिंह होरी इत्थे आए ने, ये हुण भी साडे बच्चों नूं गतका ते चक्कर वगैरह चलाउणा सिखाउंदे ने। चक्कर चलाउणा, पटा चलाउणा। एक ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਡਾਂਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਨਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਤੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ बस अगों की लिया के सज्जे के अगों नहीं लिया के पिछले पासे रखना, सज्जे के बराबर। ये पैंतड़ा है, ये 4 हिस्से बन जाते हैं। इस तरह ही एक सलामी लेंदे ने, वो भी 4 हिस्से बनते हैं। मेरे वास्ते ये कृपा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने की सानू। पोलो खेडण का उस्ताद लिया के दिता, राग के उस्ताद लिया के दिते, गतके के उस्ताद लिया के दिते, कुलन के उस्ताद लिया के दिते। गिणिया ही नहीं जा सकता भी किन्ने किन्ने परोपकार सच्चे पातशाह ने किन्ना। मैं सच्चे पातशाह ने मिश्री तवी की जिहड़ी बनती है, वो मैनू सगरों ने आप कृपा करके सिखाई। असीं मिश्री बूरा पतासे आप बना लेंदे सन। ते फिर एक साफ होती सी ते उत्ते चौरा खेत विछा के सराहना, कपड़े अपने आप धोने। ये सगरों ने कृपा करके सानू सुतंत्र बनाया। हर धर्म के काम दे विच नितनेम दे विच घुलना घुलदियां थकेवा हो जाता। बावजूद इस गल के फिर भी जाके नितनेम च बहना, कई बार ऊँह भी आनी, फिर तगड़े हो गए करना। जिन्ने बच्चे सारे सन वो 4 बजे उस्ताद जी को जाने सन, पर मैनू 3 बजे भेजा जाता सी उस्ताद जी जाने वास्ते। बहुत सारी गल्लां ने जिहड़ियां सतगुरां दी किरपा नाल सतगुरां ने सिखाइयां। घोड़े की सवारी, रेस भी एक बार सतगुरां ने मैनू चाढ़िया सा। जी वैसे तो घोड़ियां नूं काम देण वास्ते, अभ्यास कराउण वास्ते सारे चढ़ते सन, साडे परिवार दे जी होर भी चढ़ते होणगे, पर जिहड़ा रेस दे विच सच्चे पातशाह ने एक बार घोड़ी ते मैनू चाढ़िया सी। ये सतगुरां किरपा कीती। ते हुण सब तो वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी सतगुरां ने मेरी अपने तो बाद वास्ते लाई, भावें मैं उस वेले बह के नहीं सुन सकिया। मैं कोशिश भी बड़ी की, मैं मंडी जावां, उदों बड़े मुकदमे चलते सन। ते अवतार सिंह दे महाराज आखन लगे भी एक बार सानू जाण दे, फिर तू जाई। उन्हें जब सच्चे पातशाह वापस आ गए, तो सतगुरां ने चन्नन सिंह थराज ते बीबी संत कौर नूं आख्या भी हुण जाके आखो लम्मा पैण दा वेला नहीं, तेरे ते बड़ा भार है। तो ये कृपा करके सतगुरां ने चुकाया, मैं भार चुकण जोगा नहीं था। तो सतगुरां ने जिम्मेवारी लाई। मैं जिस तरह तुहानूं सुरजीत सिंह ने आख्या भी सुखी देखना चाहुंदा, सतगुरां दे बार बार उपदेश चाहुंदा भी जिहड़े 1 घंटा नाम ना सिमरन करनगे वो दुखी होणगे। मेरे तुसीं सारे परिवार हो मेरा, मैं तुहानूं सारिआं नूं सुखी देखना चाहुंदा। तो 1 घंटा कुछ भी नहीं हुंदा, तुसीं तगड़े होके उद्यम करो तो भजन कराया करो। सारे एक दूजे नूं आसरा दे के उठाओ, भजन कराओ। आप जपो अवरह नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰ ਲੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਰਬੱਤ ਸਭ ਅਰਪਿਓ, ਅੰਧ ਸਾਜ ਤੁਨ ਚੋਕ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੇਸ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਬਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁੰਨ ਸਿੰਘ ਕਈ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 74 ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਰੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ 1.25 ਲੱਖ 5ਵਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਵਰਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
पर ये भी सगुरां ने हुक्म दिता कि कांग्रेस साडा परिवार है, असीं कांग्रेस के नाल ते इस सारी गल का आप ध्यान रखना सारे ने कि सगुरां ने अपन ये गल आखी है। मैं कोशिश कर रहा भी जिहड़ा सगुरां ने लिख के दिता सी वीवल कॉन्फ्रेंस वेले वो भी जे लभ गया तो फिर मैं अगली गल करांगा की कुछ लिखिया सी। इस गल का बहुत ध्यान रखो कि असीं किसी पार्टी के नाल नहीं, किसी पार्टी के थल्ले नहीं, असीं सगुरां दे हुक्म थल्ले हाँ ते उन्होंने हुक्म दिता है कि कांग्रेस जिहड़ा है साडा परिवार है, असीं उन्हां दे नाल हाँ। उन्होंने हुक्म अनुसार असीं नाल हाँ उन्हां दे। ये तुहानूं पता भी किन्ने साल हो गए ने 1944-45 तो जदों दी वोटां पैण लगियां ने, पहले होणगे मैनूं इन्ना चेता है उदों तो लग के साडियां वोटां च कांग्रेस नूं गिणियां जाण कि किन्ने करोड़ किन्ने अरब बनणगीਆਂ इस सोचण वाली गल। पर कदे इस लिखिया भी असां कोई ट्रक का परमिट आख्या लैना, कोई लोहे का कोटा लैना जां उन्होंने कुछ किया, जिहड़ा कुछ किया सगुरां ने अपनी किरपा नाल कीता, अपने पैरों से तुहानूं खिलारिया, आप बख्शिश करके जमीन दित्ती है सगुरां ने किरपा करके। उदों जी नहीं लगता नामधारियां दा भजदे सन पिछां नूं चुक चुक के, पर सगुरां नूं हुण पता लगता है कि सगुरां ने किस तरह किरपा की। औले का खाधा सियाणे का आख्या कुछ समय बाद पता लगता, औला खाद्या कौड़ा लगता, बाद चो मिठा होंदा। तो सगुरां दा हुक्म जिहड़ा ना ये वास्ते बाणी तुक लिखी है, कोई सियाणा सो पत बनता हुक्म लग्या जिस मीठा जी, मत्था ने टेक दिता ते मन च आया भी मत्था टेक ही लिया, हुण मैनूं बख्शिश हो ही जानी है, मतलब हुक्म मैनूं दी की लोड़ है। फिर उत्थे अपने वो गल नहीं रह जाती, फिर वो गल आ जाती है सलाम जवाब दोवा करे मुंडा पुठा जाए वाली गल हो जाती है। सगले उद्यम करो, गुरु किरपा करन, असीं भजन बाणी करिए ते साडे मन सगुरां दे दर्शन वाले होण, सगुरां दे सानूं दर्शन होण। सतगुरु दर्शन अगर निवारी सतगुरु पेट तो होना मारी। रसना पवित्र करन लई सब गज के आखो धੰਨ श्री सतगुरु राम सिंह जी। ये होले का पर्व सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के उपदेश, इसका सारा इतिहास तुसां सुनिया। जिन्होंने संतां नूं तुसीं सुन रहे सो, इन्होंने अकाली पत्रकार नूं बहुत चिर संपादित किया है ते उस जगत विच रहे ने। इन्ना लिखारी हुंदियां होइयां, सियासत की जानकारी हुंदियां होइयां भी MLA MP वाले पासे नूं इन्हां दा ध्यान सगुरां नहीं जाण दिता। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे वाली गल, जिस वेले पुराना कोई चंगा कर्म किया है उहदा उछाला आया, सतगुरु राम सिंह की संगत विच आए। जो कुछ अज असीं वेखदे हां ਇਹਦਾ कुछ समा बाद पता लगता है, ਜਿਹੜਾ प्रसादा असीं अज छकदे हां 4 पैर 8 पैर बाद उसका पता लगता है। पर ਜਿਹੜੀ संगत असीं कर रहे हैं, कबीर जी ने लिखा, कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परा बहीर, एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। उस घाटी से सतगुरु राम सिंह अकाल पुरख सच्चे पातशाह सानू चाढ़ रहे ने, जिहड़ी दुनिया की पहुँच तो बहुत दूर है। पर जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, जिहड़ा खाना हुण खाना है उहदा कुछ समय बाद पता लगना है। इस तरह ही जिहड़े असीं कर्म करने ने, जिन्ना सतगुरु वाले पासे ध्यान देना है, उहदा पता सानू जिस वेले अंत का समा आना है उदों लगना है। ये अखबारां विच खबरां छपदियां
ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਮਧਰੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਭੰਗਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਲੀਏ ਭੇਜੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਫੌਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
फिर एक बाबा की नाम से प्यारा सन सेठ प्यारा सन का साम वाला गुरसाई सिंह जी एक संत सन सबाजपुर दे उन्होंने इत्थे आके हुण आसाम में जाके सीट छड्डिया। उन्होंने मैनू आप गल सुनाई, मेरे दिल च बड़ी तीबर इच्छा हुई भई करतार जां रब नां दी चीज़ किहड़ी है। आंदा मैं इस तरह ही सोचदा सोचदा घर पिया, मेरा शरीर जिहड़ा ना वो ठंडा हो गया, मेरा जीव आत्मा शरीर से निकल गया। ते मैं एक ऐसे राह ते जा रहा जिहदे थले जमीन नहीं हैगी। ते मैं तुरया जा रहा जांदियां ऐसे सोहने थां वेखे ने जिहड़े मैं इस संसार ते नहीं वेखे कदे भी। जांदियां जांदियां अगे वेख्या सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह बैठे ने। उन्होंने ये दस्या कि करतार जां रब ये होई है जिन्हों तू लभदा वो कहता है कि मैं सतगुरां दे दर्शन किए, सतगुरां बहन वास्ते कह दिता। अगर मैं उन्होंने पूछा भी ये दस कि तू जिथे बैठा जमीन हैगी इत्थे? कहता जमीन कोई नहीं। बड़ी अजीब गल है, जमीन है नहीं, वो बंदा बैठा है उत्थे। फिर उन्होंने पूछा भई ये चानन जिहड़ा है कहदा है? चंद्रमा ना सूरज कोई चीज़ नहीं, ना बत्ती जगदी उत्थे, उत्थे रोशनी। इस तरह उन्हें कुछ समा बिताया। कुछ समय बाद उसका जीवात्मा फिर वापस आ गया। वो कहता मेरे घर दे मेरे हथ पैर दसदे ने कि तेरे नब्जां मुड़ गई, तेरा शरीर इस तरह हो गया, ठंडा हो गया। वो कहता वो जो स्वाद वेख्या ना वो मैं इस दुनिया से कदे नहीं वेख्या। इस तरह ही एक संत अमर सिंह होरी सन जिन्होंने जड़ा वाली करके भी कहते सन। अजकल उन्होंने परिवार लुधियाने में रहिंदे ने। उन्होंने जिस वे अंत का समा आया वो बीमार होए। इत्थे दमदमे अस्सू का वेला सी जिस तक मैंने चेता है। तो उन्होंने मैंने आके पूछा भी मैं इलाज कित्थे करावां? मैं तुसीं मैडिकल इंस्टीट्यूट चले जाओ। वो मैडिकल इंस्टीट्यूट चले गए दिल्ली। उत्थे उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने घरदियां नूं, उन्होंने लड़का गुलजार सिंह जवाई उन्होंने यशपाल सिंह, ये दोवें कोल ने, ये पग्गां टेढ़ियां बंधे ने। उन्होंने पूछा पिता जी कोई लोड़ किसी चीज़ की? आखन लगे जी दुनिया की चीज़ां ने ना, जो कुछ मैनू सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने विखाया है उन्होंने वेख के तो खाना तो की, इन्होंने वेखण जी नहीं करता। इस तरह करदे करदे उन्होंने नर्सां नूं, डॉक्टरां नूं सारिआं नूं सद के आख्या कि मेरा तुहाडा हिसाब सारा मुक गया, अज तो ना मैं दवाई खानी है ना मेरा तुहाडा कोई हिसाब है। मैनू समा पूरा तो नहीं याद, शायद 2:20 के किन्ने मिनट से उन्हें आख्या भी मेरा नवंबर का महीना थी मेरा ख्याल कि तारीख में मैं शरीर छड़ देना, इन्ने बज के इन्ने मिनट ते अपने जवाई नूं, अपने लड़के नूं सद के आख्या कि पग्गां सीधियां बन्निया करो, अगे जाके इन्हां पग्गां की मंजूरी है, तुहाडे वालियां दी नहीं। नाल उन्होंने आख्या भई तुसां मनना नहीं मैनू पता है, पर मंजूरी अगे इन्हां पग्गां की नहीं हैगी। साध संगत जी पूरे दसे समय अनुसार उन्होंने शरीर छड़ दिता। तो अनेक कथावां इस तरह दियां ने। असीं जदों इत्थे बैठते हैं साध संगत दे विच, सब तो जरूरी साडे वास्ते ये है कि असीं सतगुरां दे चरनां 'च अरदास करिए कि जदों इस संसार तो जाना है साडी बांह तेरे हत्थ विच होवे, ते जिथे तेरी रजा है अपनी दरगाह दे विच सानूं प्रवान कर, उत्थे असीं चले जाइए ते इस तरह जाइए कि उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़ा कोई। अभ्यास करो,
कुछ तुखां दे उत्ते अभ्यास करो, बाणी पढ़ो, सुखमनी साहिब की एक अष्टपदी रोज़ पढ़ लिया करो, पढ़ के विचारो, कोई एक तुख ते विचार कर लो, किसी एक पौड़ी ते विचार कर लो, ताकि जिहड़ी असल साडी जीवन यात्रा की सफलता है उस विच असीं जा सकीए, लंघ सकीए, उत्थे पहुँच सकीए। जा पावस सिंध धूप नहीं छईया, ना उत्थे गर्मी ना ठंड ना कोई होर कोई चीज़ उत्थे। मैं तुहानूं की आखां, तुसीं सारे मैनूं इस तरह लगता है कि मेरे नाल बहुता भजन बाणी करने वाले हो, मेरे नाल बहुते विचारवान हो, ते सगुरां दे चरनां च बिरती ला के, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है एक दिसण नूं नहीं जापदी। बाद वे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। उस तरह का नहीं होंदा जिस तरह असीं समझदे हां। पर सगुरां ने लिखिआ कि ये जिहड़ा संसार है, मान ले संसार अंध घेरा, चौं दिस पसरिओ है जम जेवरा। ये पढ़ते भी हाँ, समझते भी हाँ, तो फिर इस वल साडा मन नहीं लगता। तो ये संसार तो, ये संसार समुद्र तो किस बेड़े में चढ़ के पार हो सकते हैं, वो भी सतगुਰਾਂ ने लिखा है। ये निरा संसार जिहड़ा है, तम संसार चरण लग धरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। मैं इन्नी अर्ज करके अगे रहूँगा।